अभी तक हमने घर के बाहर क्या चीज़ें, किन चीज़ों के लिए हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं वह देखा। हमने अपने घर से निकलकर सड़क, उसके पास बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जिन बिल्डिंग्स के नाम हैं वो गवर्नमेंट डेजिग्नेशंस, इन सब के बारे में देखा। सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट, दुनिया का जो है सेगमेंट, उन सब के बारे में देखा। नदी जो है, पहाड़, झील इत्यादि के नाम वगैरह, इन सब के नाम कैपिटल होते हैं, ये सब देखा। पर यह सब घर के बाहर की चीज़ें हमने देखी जिनमें हम कैपिटल लेटर काम में लेते हैं। अब हम देखेंगे कि घर के अंदर क्या चीज़ें हैं जिनमें हम कैपिटल लेटर काम में लेते हैं। Till now we saw that what are the things outside the home that we use capital letters to write those things, their names. We saw that if the house has a name, or the street name, or the building's name, or the government building name, or official titles, they are all capitalized. We also saw that the city, state, country, continent, part of the world, rivers, mountains, valleys, they are capitalized. And we also saw that the planets in the sky are capitalized with some exceptions. Now we will see that where do we use capital letters for things inside the house. देखिए, घर के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले कौन रहता है? आप रहते हैं, मैं रहता हूं। तो घर में आप पूछें कौन रहता है तो बोले कि मैं रहता हूं। तो जो I है वह घर के अंदर जिन चीज़ों को हम कैपिटलाइज करते हैं उसमें I जब अपने आप के बारे में बताता है तो उसको हमेशा कैपिटलाइज करते हैं। जो मैं का I होता है उसको कैपिटलाइज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, I do not know what you are talking about. तो यहाँ I कैपिटलाइज्ड है, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, How can I tell you the answer when I myself do not know it? कि मैं आपको जवाब कैसे बता सकता हूं जबकि मुझे खुद को इस चीज का जवाब पता नहीं है। इस सेंटेंस में दो I है, एक I यहाँ है और एक I यहाँ है, और दोनों I कैपिटलाइज्ड हैं। ये छोटा I है, देखिए टॉकिंग में जो है ना, ये छोटा है, ये बड़ा I है। तो I इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। I जो है उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जब अपने आप के बारे में कोई बात कर रहा हो और I हो उस बारे में, उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मिल्वा राइटिंग में इसमें ऐसे ये छोटा I है। See, who lives inside the house? If I ask you that question, everybody will say, I live inside the house. So inside the house, the first thing you capitalize is I. When I is used to refer to oneself, then it is capitalized, even if it is in the middle of the sentence. For example, there are two sentences here. First sentence is, I do not know what you are talking about. Here, I is capitalized. You can also say this is the first alphabet of the sentence, so it is capitalized. That is fine. Here is another example. How can I tell you the answer when I myself do not know it? Here there are two I's in this sentence. One I is here and the other I is here, and they are both capitalized. They are both capital I's. This is a small I in talking, and this is a capital I. So remember, I is always capitalized when it is referring to oneself. If I ask you who else lives in your house, some of you may say, oh, God lives in the house. So G of God is always capitalized when we are talking about the God Almighty. But when God is used as a common word,
then the G in God is not capitalized. For example, first sentence is he asked God why him. Here God refers to God Almighty, so G of God is capital. Let's look at the second sentence. But the God was silent. Here again we are talking about God as God Almighty, so G in God is capital. Now compare these two sentences with this third sentence, which is he thinks he is God. Now we are not talking about God Almighty, but we are talking of the word God in common terms, so this is not capitalized. देखिए, आपके अलावा घर में मैं पूछूं और कौन रहता है, तो कई जने बोलेंगे भगवान रहता है. भगवान को इंग्लिश में गॉड या लॉर्ड बोलते हैं. तो जो अपन जब भगवान की बात करते हैं, भगवान जिसको कि हम मानते हैं स्वर्ग में है, जो भी है, गॉड ऑलमाइटी की बात करते हैं, तो गॉड का जी कैपिटल होता है. पर जब हम गॉड शब्द को एक कॉमन शब्द के रूप में काम में लेते हैं तो वह जी कैपिटल नहीं होता. आइए एग्जांपल देखते हैं. ही आस्क्ड गॉड व्हाई हिम. उसने भगवान से पूछा कि वो क्यों, कि मतलब उसको क्यों तकलीफ दी या जो भी है, व्हाई हिम. यहां गॉड जो है, ही आस्क्ड गॉड व्हाई हिम, गॉड जो है, गॉड ऑलमाइटी जो है, भगवान जो है, उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए गॉड का जी कैपिटल है. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं. बट द गॉड वॉज साइलेंट. पर भगवान चुप था. उसने सवाल पूछा पर भगवान चुप था. यहां फिर हमने भगवान की बात की जो कि स्वर्ग में है, अंतरात्मा है, जो एब्स्ट्रैक्ट भगवान है, जिसका कि हम रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात करते हैं. तो गॉड का जी वापस कैपिटल है. इसको आप कंपेयर करें इस तीसरे सेंटेंस से. उसमें लिखा है कि ही थिंक्स ही इज गॉड. वो सोचता है कि वो भगवान है. अभी हम डायरेक्टली भगवान की बात नहीं करें, पर भगवान शब्द को एक कॉमन शब्द के रूप में काम में ले रहे हैं, कॉमन टर्म के जैसे काम में ले रहे हैं, इसलिए गॉड का जी कैपिटल नहीं है. देखिए, गॉड से फिर नेक्स्ट अपन जाते हैं होली टेक्स्ट पर, कि जो पवित्र किताबें हैं धर्म की, वे जो हैं उनका पहला अक्षर जो है वह अंग्रेजी लिखित में कैपिटल लिखा जाता है. जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, बुक्स लाइक रामायणा, बाइबल, मुक्ति सूत्रा टीच अस द लेसन ऑफ लव फॉर लिविंग एंड फॉरगिवनेस फॉर ऑल. कि रामायण, बाइबल और मुक्ति सूत्र जैसी किताबें हमें सब जीवित प्राणियों के लिए प्यार करना सिखाती हैं और सबको माफ करना सिखाती हैं. तो रामायण का आर कैपिटल है, बाइबल का बी कैपिटल है, और मुक्ति सूत्रा जो कि गुरु रामदास का लिखा हुआ है, उसमें दो शब्द हैं, तो दोनों शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल है. मुक्ति का एम और सूत्र का एस कैपिटल है. अगर हम दी लगाएं इनके आगे, जैसे दी बाइबल लिखें, तो बाइबल, दी बाइबल का टी भी कैपिटल होगा, जैसे कि यहां दिखाया है दी बाइबल. तो जो होली टेक्स्ट है, जो पवित्र किताबें हैं, वे भी कैपिटल लेटर से उनका लिखना शुरू होता है, पहला अक्षर उनका कैपिटल होता है. After we saw that we capitalized G in God when we are talking about God Almighty, let's go to the next thing that is capitalized, and that is names of holy texts. So for example, in this sentence, books like Ramayana, Bible, Mukti Sutra teach us the lesson of love for living and forgiveness for all. So you see the R in Ramayana is capitalized, B in Bible is capitalized, and Mukti Sutra has two words. Mukti Sutra is written by Guru Ramdas, and
So first alphabet of M in Mukti and S in Sutra is capitalized. If you write the Bible, if you add the or the in front of these, then the T in the is also capitalized. For example, here the Bible. So the holy texts are capitalized. First alphabet of holy texts. चलिए, जो पवित्र किताबें थी उससे एक कदम आगे चलते हैं. तो जो संत होते हैं, सेंट होते हैं या प्रॉफिट होते हैं, उनमें उनका नाम तो कैपिटल होता है, पर जो अक्षर है, जो शब्द है सेंट या प्रॉफिट, वो भी कैपिटल होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. आउट ऑफ मैनी सेंट्स, सेंट पीटर इज द मोस्ट फेमस एंड सेंट पॉल मोस्ट फेवरेट. कि जितने भी संत हुए हैं उनमें संत पीटर सबसे ज़्यादा प्रख्यात हैं और संत पॉल सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं. तो यहाँ देखिए, दोनों जगह जहाँ सेंट लिखा है वहाँ सेंट का एस कैपिटल है. यही सेंट वर्ड अगर हम कॉमन वर्ड के जैसे काम में लें, दैट ही इज अ सेंट, कि वो बिल्कुल सादा जीवन बिताता है, तो उसमें एस कैपिटल नहीं होगा. आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. स्टार्ट ऑफ इस्लामिक कैलेंडर corresponds with the Prophet Muhammad immigration from Makkah to Medina in the year 622. कि इस्लामिक जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत प्रॉफिट मोहम्मद, जो हज़रत मोहम्मद जिसको बोलते हैं, तो प्रॉफिट मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने का जो साल था 622, उसमें इस्लामिक कैलेंडर उससे कॉरस्पॉन्ड करता है, उस समय शुरू हुआ. तो यहाँ प्रॉफिट का पी जो है कैपिटल है, और इसी प्रॉफिट को अगर हम कॉमन शब्द की जैसे यूज करें कि ही इज अ प्रॉफिट या ही लिव्स लाइक अ प्रॉफिट, तो उसमें प्रॉफिट का पी कैपिटल नहीं होगा. अभी हम साल 2014 में जी रहे हैं, तो जो शब्द हैं सेंट, प्रॉफिट वगैरह, ऐसे आदरणीय जो शब्द हैं उनका पहला अक्षर कैपिटल होता है. सी, वी सॉ दैट G in God is capitalized, then we saw holy texts are capitalized. Now we go a step further and we see that the name of the word saint and prophet and similar words are also capitalized. So of course the name of the saint will be capitalized because it's a proper noun, but also the word saint and prophet is capitalized as shown here. Out of many saints, Saint Peter is the most famous and Saint Paul most favorite. See, when the saint name comes with the saint's name, then the S is capitalized here and here. But when saint's word is used as a common word like out of many saints, this S is not capitalized. Let's look at the next example. Start of Islamic calendar corresponds with the Prophet Muhammad immigration from Makkah to Medina in the year 622. Now we are in the year 2014. So here the word prophet is attached to the word Muhammad's, and so the P in prophet is capitalized. If the word prophet was used as a common noun, as a common word, like he lives like a prophet, then the P would not have been capitalized, but here it is attached to a name, then it is capitalized. और देखते हैं कि जो इनाम मिलते हैं, इज्जत के इनाम मिलते हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ है, भारत रत्न है, विक्टोरिया क्रॉस है,
ये जितने भी रेस्पेक्ट के, इज्जत के नाम होते हैं, ये भी, इनका भी पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर हिज वर्क इन एस्ट्रोफिजिक्स। In 1930 he also got Nobel Prize for Physics। तो हम यहाँ देखते हैं कि भारत रत्न एक अवार्ड है, एक इनाम है, एक इज्जतदार इनाम है। तो भारत का बी और रत्ना का आर कैपिटल है। इसी तरह से नोबल प्राइज एक बड़ा इनाम है, तो नोबल का एन और प्राइज का पी भी कैपिटल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट इज little known fact that Alfred Nobel, after whom Nobel Prize is named, was also the inventor of dynamite। So Alfred Nobel was a scientist, he also invented dynamite, and here Nobel Prize is a respected prize, so we capitalize N in Nobel and P in prize। देखिए, हम जब इज्जत की बात कर रहे हैं इनामों में और नामों में, तो जो बड़े इनाम होते हैं जिनमें कि इज्जत के साथ इनाम मिलता है, उनको भी हम कैपिटलाइज करते हैं। जैसे कि नोबेल प्राइज है, भारत रत्न है, या विक्टोरिया क्रॉस है, या और बड़े इनाम हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर हिज वर्क इन एस्ट्रोफिजिक्स। इन 1930 ही ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। कि सीवी रमन जो साइंटिस्ट था, उसको भारत रत्न मिला एस्ट्रोफिजिक्स में काम करने के लिए, और 1930 में उसको नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला। तो भारत रत्न और नोबेल प्राइज दोनों बहुत इज्जतदार इनाम है, इसलिए भारत का बी, रत्ना का आर कैपिटल है, और इसी तरह से नोबेल प्राइज में नोबेल का एन और प्राइज का पी कैपिटल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट इज लिटिल नोन फैक्ट दैट एल्फ्रेड नोबेल, आफ्टर होम नोबेल प्राइज इज नेम्ड, वॉज ऑल्सो द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। कि ये बहुत कम लोग जानते हैं इस सत्य को कि जो एल्फ्रेड नोबेल था, जिसके पीछे की नोबेल प्राइज का नाम है, वह उसने डायनामाइट की, बारूद की भी जो है इन्वेंशन किया था, खोज की थी। उसने बारूद भी बनाई थी सबसे पहले दुनिया में। तो यहाँ नोबेल प्राइज जो है एक इज्जतदार दुनिया में इनाम है, इसलिए नोबेल का एन और पी का प्राइज जो है कैपिटल है। इसके बाद आप देखें कि जो भाषाओं के नाम हैं उन्हें भी कैपिटल किया जाता है, उनका पहला अक्षर कैपिटल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, देयर इज सम एविडेंस दैट संस्कृत मे बी द ओल्डेस्ट स्पोकन लैंग्वेज ऑन अर्थ, लैटिन कम्स क्लोज सेकेंड। कि ऐसा एविडेंस है, ऐसा सबूत है कि संस्कृत जो थी सबसे पुरानी बोली जाने वाली भाषा जमीन पर थी, पृथ्वी पर थी, और लैटिन जो है उसके जस्ट बाद सेकंड नंबर आती है। तो इसमें संस्कृत और लैटिन भाषाओं के नाम है, तो संस्कृत का एस और लैटिन का एल कैपिटल है। एक और एग्जांपल देखें। सुमेरियंस में बी द फर्स्ट टू एवर हैव डेवलप्ड a written cuneiform script at around 2000 years BC before Christ, that is over 4000 years from now। कि सुमेरियन जो थे, सुमेर जो सभ्यता थी, वो ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले उन्होंने लिखित भाषा डेवलप की, जो कि क्यूनिफॉर्म नाम की भाषा, क्यूनिफॉर्म तरीके से लिखे जाने वाली भाषा थी, जो कि 2000 साल पहले डेवलप हुई, ईसा के जन्म से पहले, यानी कि आज से 4000 साल पहले बनी। क्यूनिफॉर्म भाषा का नाम नहीं है, क्यूनिफॉर्म लिखने के तरीके का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल नहीं किया। पर जो भाषा है, या सुमेरियंस जो है, ये
उन लोगों का नाम है, तो भाषा जो भी होती है वह कैपिटल में उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ होता कि रिटन सुमेरियन यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, तो उसका एस कैपिटल होता, जैसा कि यहाँ अभी मैंने आपको दिखाया। The names of languages are also capitalized. So, for example, first sentence says there is some evidence that Sanskrit may be the oldest spoken language on earth and Latin comes close second. Here Sanskrit and Latin are names of languages, so S in Sanskrit and L in Latin is capital. Another example, Sumerians may be the first to ever have developed a written Sumerian cuneiform script at around 2000 years BC or before Christ, that is over 4000 years from now. So here this Sumerian language is a language, so S is capital. Cuneiform is not a language. Cuneiform is a way to write it by using sharp instrument. So the names of languages are also capitalized. Then what else do we have in books? We have, I said, we have you have yourself, you have God, you have holy books, you have other books now, and holy books can be in different languages. Next we go to title of books. When the title is on the front of the book, then the first alphabet of each word is capitalized other than two-letter words. So what it says that the first alphabet of the name of the book, each word, the first alphabet is capitalized, but those that are two alphabet words, especially if they are prepositions like on, at, in, am, be, they are not capitalized. For example, here the story of mankind, T, S and M are capitalized, but O in of is not capitalized. Next example, why are we born? Here V is not a preposition, so W in V is capitalized. The next one, the final warrior of the northern plains. All the first alphabets in all the words are capitalized, but of, it's a preposition, is not capitalized. From books, what else do we have in the home? Magazines. So the names of the magazines are capitalized, like there's a magazine called Reader's Digest, it's an English magazine, so R in Readers and D in Digest is capitalized. Another one is Chanda Mama, it's a Hindi magazine, so C in Chanda and M in Mama are capitalized. Then another example of a magazine is Spanish Media. This magazine talks about Spanish programs. So S in Spanish and M in Media is capitalized. हमने देखा कि धर्म की किताबें, लैंग्वेजेस वगैरह, उनका पहला अक्षर कैपिटल होता है। धर्म की किताब से आप घर के अंदर और क्या होता है, मामूली किताबें होती हैं, तो मामूली किताबों में क्या कैपिटलाइज होता है कि उनका जो टाइटल होता है, जो उनका नाम होता है, वो कैपिटल में लिखा जाता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है उसमें, हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। पर अगर नाम में प्रेपोजिशन है, जैसे कि ऑफ हुआ, इन हुआ, एट हुआ, इज हुआ, तो उसको कैपिटल नहीं करते। तो ऑफ, इन, एट वगैरह प्रेपोजिशन है और इज जो है वर्ब है, तो उनको दो अक्षर के जो होते हैं ये ऐसे उनको कैपिटलाइज नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड एक किताब का नाम है, इसमें द का टी, स्टोरी का एस और मैनकाइंड का एम कैपिटल है,
पर ऑफ कैपिटल, इसका ओ कैपिटल नहीं है क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, वाई आर वी बॉर्न किताब का नाम है, तो इसमें WEV दो अक्षर का है, पर क्योंकि ये प्रेपोजिशन नहीं है या इज वगैरह नहीं है तो इसको कैपिटल किया गया है। तो हर पहला अक्षर हर शब्द का कैपिटलाइज्ड है। एक तीसरा एग्जाम्पल देखें, द फाइनल वॉरियर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एक किताब का नाम है। आप देखें इसमें हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटलाइज्ड है सिवा ऑफ के। और हमने देखा कि दो अक्षर के जो प्रेपोजिशन होते हैं उन्हें अक्सर कैपिटलाइज नहीं करते। ध्यान रखिए कि अगर आपके इस टेक्स्ट में दो अक्षर के शब्द हैं या दो अक्षर के शब्द हैं, तो ऐसा ना करें कि एक को कैपिटल किया एक को नहीं किया, सब एक जैसे होने चाहिए। किताबों के बाद हमारे घर में और क्या होता है कि मैगजीन्स होती हैं। तो मैगजीन जो होती हैं उनके नाम का पहला अक्षर, हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे कि एक मैगजीन है अंग्रेजी की, उसका नाम है रीडर्स डाइजेस्ट, तो रीडर्स में आर कैपिटल है, डाइजेस्ट में डी कैपिटल है। एक दूसरी मैगजीन है हिंदी की, उसका नाम है चंदा मामा, तो चंदा का सी कैपिटल है, मामा का एम कैपिटल है। एक स्पेनिश मैगजीन है जिसका नाम है स्पेनिश मीडिया, जो कि स्पेनिश टेलीविजन के प्रोग्राम्स के बारे में बताती है, तो उसमें स्पेनिश में एस कैपिटल है और मीडिया का एम कैपिटल है। मैगजीन के बाद घर में और क्या होता है, मूवीज होती हैं, DVDs वीडियो वगैरह होते हैं। तो अगर मूवीज वगैरह की DVD या वीडियो है तो उसका जो नाम होता है, अगेन उसमें जो पहला अक्षर होता है हर शब्द का वह कैपिटल होता है सिवा दो अक्षर के शब्दों के। तो एक अंग्रेजी की मूवी है गन्स ऑफ नेवरॉन, तो इसमें गन्स का G और नेवरॉन का N कैपिटल है पर ऑफ कैपिटल नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल है हिंदी मूवी का, हिंदी फिल्म का, जिस देश में गंगा बहती है, तो इसमें जो पहला अक्षर है वह सब जो है हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में है। एक फ्रेंच फिल्म है, उसका नाम है द फ्रेंच कनेक्शन, इसमें भी आप देखिए कि शब्द का पहला अक्षर कैपिटल है। एक इंग्लिश फिल्म है बच्चों की, उसका नाम है फाइंडिंग नीमो, तो इसमें आप देखिए फाइंडिंग का F और नीमो का N कैपिटल है। See, after we saw that holy books names are capitalized, names of books are capitalized, what else do we have in the home? We have movies, DVDs, VHS tapes. So in those movies or DVDs, in the name of the title of the DVD, the first alphabet of or first letter of the word is capitalized. For example, there's a English movie called Guns of Navarone, and G in guns and N in Navarone is capitalized, but off is not capitalized because it's a two-letter preposition. There is a Hindi movie called Jis Desh Mein Ganga Bahti Hai, and in this name of this movie there are like 6 words and each word has the first alphabet capitalized, so that is how the names of movies are written. There is a French movie called The French Connection, and here you can see the first alphabet of each word is capitalized. There is another movie for children called Finding Nemo, and F in Finding and N in Nemo is again capitalized. मूवीज के बाद आगे चलें तो जैसे कोई प्रेजेंटेशन है, जैसे कि ये आप जो अभी देख रहे हैं एक प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है वह भी उसी तरीके से कैपिटलाइज होता है जैसे कि मूवीज के DVD के टाइटल कैपिटलाइज होते हैं। तो ये 3 प्रेजेंटेशंस हैं जैसे हमारे ही हैं ये। तो आप देखिए पहला प्रेजेंटेशन है लर्न इंग्लिश थ्रू गुजराती, तो गुजराती के माध्यम से अंग्रेजी सीखें। यहाँ आप हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इस टाइटल में हर पहला अक्षर हर शब्द का कैपिटल है,
लर्न का L, इंग्लिश का E, थ्रू का T और गुजराती का G। एक और हमारा प्रेजेंटेशन है हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इसमें आप देखिए हर जो है शब्द का पहला अक्षर कैपिटल है। एक और टाइटल है योगा द अल्टीमेट सॉल्यूशन। इसमें भी आप देखिए हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल है। ये हमारे सब टाइटल है और बहुत सारे टाइटल है, पर ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको 3 टाइटल दिखाए। सी आफ्टर द टाइटल्स ऑफ DVDs we go to the next thing that is capitalized, next object that is capitalized, and that is the titles of presentations. What you are watching here is a presentation, and so the title of the presentation, first letter and alphabet are the same. So the first letter or alphabet of every word is capitalized. These are 3 of many of our titles of presentations, and the first one is learn English through Gujarati. Here in this presentation you are learning English through Hindi, but in this title which is mentioned here, learn English through Gujarati, it's a title of a presentation, so each first alphabet is capitalized in each word. We have another presentation called how to live a happy life, and again you see the first alphabet of each word is capitalized, and because to and a are not prepositions, they too are capitalized. We have another title called Yoga the Ultimate Solution, and again the first alphabet or letter of each word is capitalized. देखिए टाइटल के अलावा जो टाइटल के प्रेजेंटेशन में पेज होते हैं, जैसे ये आप टाइटल देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे पेज हैं जो हम पलट रहे हैं, तो उसका जो टाइटल होता है वो भी कैपिटल लिखा जाता है। जैसे ये है प्रेजेंटेशन पेज का टाइटल, एक तो पूरे प्रेजेंटेशन का टाइटल होगा, एक प्रेजेंटेशन के हर पेज का टाइटल होगा, तो यह पेज का टाइटल है। तो इसमें भी आप ये देखिए पहला जो अक्षर है वह कैपिटल है, और दूसरे पेज के टाइटल हो सकते हैं प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, तो इसमें पहला अल्फाबेट कैपिटल है। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ अ न्यू सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड, तो ये टाइटल था, तो इसमें भी पहले अक्षर कैपिटल हैं। सी बिसाइड्स द टाइटल ऑफ द होल प्रेजेंटेशन, द टाइटल्स ऑफ ईच पेज ऑन of the presentation are also capitalized. For example, in this presentation that you are watching, there are like 80 pages. This is a page and this is the title of the page, and here you see that the title, the first alphabet is capital. So title of each page on the presentation is also capitalized. फिर जो न्यूज़ के आइटम होते हैं, न्यूज़ जो अखबारों में खबरें होती हैं, उनके जो टाइटल होते हैं उनमें भी जो पहला अक्षर है हर शब्द का वह कैपिटल होता है। जैसे कि एक खबर है, सीवियर थंडरस्टॉर्म रेवेजेस द काउंटी, कि बहुत भयंकर तूफान जो है वह काउंटी में या राज्य में आया हुआ है, ये आया था, उसने बहुत नुकसान किया, रेवेजेस। तो इसमें आप देखिए कि सीवियर का एस, थंडरस्टॉर्म का टी, रेवेजेस का आर, दी का टी और काउंटी का सी कैपिटल है, क्योंकि ये न्यूज़ का हेडलाइन है। इसी तरह से एक दूसरी न्यूज़ की हेडलाइन है 7 लॉस्ट एट सी, कि 7 जने समुद्र में खो गए, डूब गए। तो उसका भी आप देखिए हर टाइटल का हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल है, पर प्रेपोजिशन एट कैपिटल नहीं है। See, after the names of the books, DVDs, movies, titles of presentations, we come to titles of news articles in newspapers.
Again, when it is a headline, each first alphabet of each word is capitalized, and here are two examples. First is severe thunderstorm ravages the county. The first alphabet of each of these words is capitalized. Another example of news headline is 7 lost at sea. So again, each first letter is capitalized in each of these words, but at is not capitalized because it's a preposition. There are special rules for 2-letter and 3-letter words, and we will see them in a moment, but be consistent. Whatever you do, use a policy that you are consistent, and we will show you an example. देखिए, 2 और 3 अक्षर के जो शब्द हैं उनको कब कैपिटलाइज करना, कब नहीं करना, इसके बारे में थोड़े कानून हैं, वो हम शीघ्र ही थोड़ी देर बाद बताएंगे। पर जो भी आप करें, अपने पूरे हेडिंग, पूरे टाइटल में आप एक समानता रखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो वह सबसे ज़रूरी है। हमने देखा न्यूज़पेपर का जो है, न्यूज़ हेडलाइन का टाइटल जो है वह कैपिटल में होता है, पर न्यूज़पेपर के जो नाम होते हैं, अखबारों के नाम होते हैं, उनका भी हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे कि ये 4 अखबारों के नाम हैं, द डेली टाइम्स, वॉशिंगटन हेरल्ड, मॉर्निंग न्यूज़ और इकोनॉमिक टाइम्स। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला शब्द का पहला अक्षर जो है, हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल है। We saw that the headlines in the newspaper are capitalized, but even the names of the newspaper are capitalized. Each first alphabet of each word is capitalized, as seen here in 4 examples of names of newspapers. The first example of name of newspaper is the Daily Times. Next one is Washington Herald. The third newspaper is Morning News, and the fourth newspaper is Economic Times. And as you see, the first alphabet of each word is capitalized. Now coming to 2 alphabet words. आइए अब 2 अक्षर का जो शब्द होता है उसके बारे में देखें कि आप जो भी करें कंसिस्टेंट हो पहला तो, और दूसरा यह है कि जो 2 अक्षर के prepositions होते हैं, एज, ऑन, एम, इन, बी वगैरह, ये कैपिटलाइज नहीं किए जाते, पर रेयरली उनको कर भी सकते हैं। मैं 2 एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, ये सेम टाइटल 2 तरीके से लिखा है। टाइटल है लाइक इट और नॉट, आई एम हु आई एम। तो इसमें 2 अक्षर के जो शब्द थे उनको कैपिटलाइज नहीं किया गया, पर उनको अगर कैपिटलाइज किया जो दूसरे एग्जाम्पल में दिखता है तो वह भी ठीक है, क्योंकि सारा कंसिस्टेंट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन 2 को कैपिटलाइज करें और इसको नहीं करें। तो या तो ऐसा ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, आपको चूज करना कि कौन सा आप लिखना चाहते हैं। सी, द रूल अबाउट 2 अल्फाबेट वर्ड्स इज दैट बी कंसिस्टेंट। फर्स्ट, the words like as, on, am, in, be, etc. are not capitalized, but whatever you do, you should be consistent in what you do. For example, this is the same title. Once it is written in all capital letters, the first letter is capital in each of the words, and second, the 2 alphabet words are not capitalized. So the title is like it or not, I am who I am. Here 2 alphabet words are not capitalized, and here they are capitalized. You can choose either of them, both are okay, but don't be inconsistent that only capitalize these 2 and not capitalize these 2. Have the same pattern. Words that are not prepositions but they are 2 alphabet words are capitalized. जो शब्द preposition वगैरह नहीं है, is नहीं है, और 2 अक्षर के शब्द हैं जैसे कि we हुआ, us हुआ, तो उनको कैपिटलाइज करते हैं।
3 अल्फ़ाबेट वर्ड्स यानी कि 3 अक्षर के जो शब्द हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं कि किसको करें किसको ना करें. दी, एंड, बट वगैरह को आप कैपिटलाइज नहीं करें तो कोई बात नहीं, पर अगर सिर्फ वही शब्द हैं जो कि कैपिटलाइज नहीं हो रहे तो आप उनको कैपिटलाइज भी कर सकते हैं. पर ये देखें कि ओवरऑल आप कंसिस्टेंट हों. ऐसा नहीं कि एंड को कैपिटलाइज किया और डी को नहीं किया. तो पूरे सेंटेंस में कंसिस्टेंट हो, एक ही फॉर्मूला, एक ही प्रिंसिपल काम में लें. 3 alphabet words are little more complex than 2 alphabet words. Words like the, and, but are usually not capitalized. But you may capitalize them. Whatever you do, be consistent. So if there are three-letter words, don't capitalize 2 and not capitalize 1. So capitalize all the 3, then it will look more consistent. अभी तक हमने देखा कि घर के बाहर क्या चीज़ें हैं जिनके नाम कैपिटलाइज किए जाते हैं, घर के अंदर क्या चीज़ें हैं जिनके नाम कैपिटलाइज किए जाते हैं. अब हम देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन के और क्या इम्पोर्टेंट रूल्स हैं कि हम लिखते हैं तो उसमें कैपिटलाइजेशन के क्या इम्पोर्टेंट रूल्स और हमें ध्यान में रखने. टिल नाउ we saw use of capital letters in writing about names and objects outside the house. Then we saw inside the house. Now we will see what else is very important when you are writing, what else to capitalize.